In this video, we will study about heat capacity of solids. Heat capacity is defined as amount of heat required to raise the temperature of the body through 1 degree Celsius. Second point है heat capacity solids की normally do not change with change in temperature, but this is only applicable at higher temperature. But value of heat capacity starts decreasing with decrease in temperature, and when temperature approaches to 0, heat capacity also becomes equals to 0. Energy of 1 mole of oscillators. If we have to calculate energy of 1 mole of oscillators, E is equal to thrice RT. So, derivative of E with respect to temperature at constant volume, that is the heat capacity at constant volume, it is equal to 3R. आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग जितने भी ऑसिलेटर्स हैं दे आर नॉट वाइब्रेटिंग विद सेम फ्रीक्वेंसी. सो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अगर इन ऑसिलेटर्स की फाइंड आउट करनी है, दैट इज द इंटेग्रल मल्टीपल या होल नंबर मल्टीपल ऑफ एच न्यू नॉट. एवरेज एनर्जी ऑसिलेटर की हमने पीछे निकाली है, मोलर एनर्जी निकालनी है तो एन नॉट के साथ थ्राइस ई को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास एक्सप्रेशन आ गया ई इज इक्वल टू थ्राइस एन नॉट एच न्यू नॉट अपॉन ई दी पावर एच न्यू नॉट अपॉन के टी माइनस 1. डेरिवेटिव ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इट इज इक्वल टू थ्राइस एन नॉट के एच न्यू नॉट अपॉन के टी ट्वाइस ई दी पावर एच न्यू नॉट अपॉन के टी डिवाइडेड बाय E h nu naught upon kt minus 1 whole square. So this is the heat capacity of solids. Now first clause is कि at lower temperature, जब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, h nu naught upon kt की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी as compared to temperature. So e the power h nu naught upon kt जो है that will become greater than 1. So as a result what you will observe is कि value of CV becomes 3 n naught k h nu naught upon kt whole square e the power minus h nu naught upon kt. तो CV की वैल्यू टेम्परेचर के साथ हमेशा कम ही होती है. अगर हायर टेम्परेचर की बात करेंगे तो h nu naught upon kt is always and always less than 1. So CV becomes equals to thrice R. This is about heat capacity of solids. इस पे सिर्फ नोट लिखना ही आ सकता है. So you have to remember all these points. 2 मार्क्स या 4 मार्क्स का नोट लिखना इस टॉपिक पे आ सकता है आपके पास. नेक्स्ट है आपके पास डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस जितने भी मटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं दे बोथ हैव पार्टिकल कैरेक्टर एज वेल एज वेव कैरेक्टर, and wave associated with matter is known as de Broglie wave. Materialistic कोई भी चीज होगी उनका wave character भी होगा as well as उनका particle character भी होगा, right? So in order to derive the de Broglie wavelength we will use two postulates. Number one is Planck's quantum theory and second is Einstein relationship. According to Planck's quantum theory, energy of a photon E that is equal to h nu, nu is equal to c upon lambda, and according to Einstein, E is equal to mc square. If left hand side of the equations are equal, right hand sides will also become equal. So h nu will become equal to mc square. Nu की वैल्यू यहाँ पे पुट करो c by lambda. So rearranging lambda becomes equals to hc upon mc square. So c के साथ c कैंसिल कर दो, लैम्डा किसके इक्वल आ गया, h upon mc. Here c is the velocity of light, you can replace it with velocity of particle. So lambda is equal to h upon mv or lambda is equal to h upon p because mass into velocity is momentum. Next is significance of de Broglie hypothesis. Now de Broglie hypothesis is only and only significant for microscopic particles because microscopic particles have small size, so mass is also less. If mass is less, then wavelength associated with microscopic particle is also large because according to relationship of de Broglie wavelength, lambda is inversely proportional to mass. De Broglie hypothesis has no significance for macroscopic particles. It is only applicable for microscopic particles. Next is to explain the wave nature of electrons. कि your electrons have wave character. You have to conduct a simple experiment. Experiment is कि you need a source of electrons. For beam of electrons you need a source of electrons and the beam of electron is allowed to pass through a slit to get a fine beam, and these electrons are allowed to incident on a nickel crystal. The atoms present in the nickel crystal will scatter all the electrons and the scattered electrons will be received on photographic plate. This results in formation of diffraction patterns. X-rays also form such kind of patterns, diffraction patterns.
electron is also forming same pattern. If X-ray is having a wave character, that means your electrons also have wave character. From this experiment it is clear कि yes, electrons have wave character. Next topic is Heisenberg uncertainty principle. According to this principle, it is impossible to measure simultaneously both the position and momentum of a microscopic particle with full accuracy. एक ही टाइम पे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की आप पोजीशन और मोमेंटम को सही मेजर नहीं कर सकते. अगर आपने उस पार्टिकल की पोजीशन सही मेजर कर ली है तो इसका मतलब मोमेंटम में गड़बड़ हुई है. अगर मोमेंटम की वैल्यू सही मेजर कर लिया तो पोजीशन में कुछ गलती हुई है. तो एक ही टाइम पे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की आप दोनों चीजें सही मेजर नहीं कर सकते. फॉर्मूला इसका डेल्टा एक्स इंटू m delta v greater than equal to h upon 4 pi, where delta x is uncertainty in position and delta v is uncertainty in velocity. Mass into velocity momentum है. You can also use this expression. So अगर आपने delta x की वैल्यू सही मेजर कर ली है, मतलब डेल्टा एक्स स्मॉल है, स्मॉल का मतलब आपने पोजीशन सही मेजर कर लिया है, तो ऑब्वियस आपने मोमेंटम गलत मेजर किया है. अगर मोमेंटम सही मेजर किया है तो आपने पोजीशन जो है वो गलत मेजर की है. इस चीज़ को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया. उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लिया और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करवाई. अब लाइट जो है वो फोटोन्स की बनी हुई है. ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग अगर आपने किसी भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन सही मेजर करनी है तो आपको वेवलेंथ उसकी शॉर्ट रखनी पड़ेगी लाइट की. अगर लाइट की वेवलेंथ शॉर्ट है तो उसकी ऑटोमेटिकली एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, ज़्यादा हो जाएगी. तो एनर्जी ज़्यादा वाले फोटोन्स जब इलेक्ट्रॉन पे गिरेंगे, नो डाउट उन्होंने पोजीशन तो इलेक्ट्रॉन की सही मेजर कर ली, बट फोटोन्स ने अपनी सारी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर दी, इलेक्ट्रॉन को. तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास भी थी और उसने गेन कर ली फ्रॉम फोटोन्स. एज ए रिजल्ट उसका पाथ जो है, जो एक्सपेक्टेड था कि इस डायरेक्शन में जाएगा, अब उसने न्यू पाथ फॉलो कर लिया. तो इस चक्कर में उसका मोमेंटम चेंज हो गया. पोजीशन सही मेजर होगी पर मोमेंटम चेंज हो गया. अगर इसके उलट हम चाहते हैं कि ऑप्टिक्स को ध्यान में ना रखें, हम लेते हैं वेवलेंथ, हायर वेवलेंथ. अगर वेवलेंथ बहुत मैंने हायर ले ली है तो ऑटोमेटिकली इसकी एनर्जी कम होगी. एनर्जी कम वाले फोटोन्स जब इलेक्ट्रॉन पे गिरेंगे तो हाँ, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम पे कोई असर नहीं पड़ेगा. बट अगर हमने लॉन्ग वेवलेंथ वाली लाइट ली है तो उसकी पोजीशन हम सही मेजर नहीं कर सकते. फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट इट इज ऑल्सो क्लियर कि यू कैन नॉट मेजर साइमल्टेनियसली बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल विद फुल एक्यूरेसी. लास्ट इसमें आता है सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. डेली लाइफ में बेटा इसका कोई प्रिंसिपल का सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि डेली लाइफ में हम डील करते हैं विद मैक्रोस्कोपिक बॉडीज, नॉट विद माइक्रोस्कोपिक बॉडीज. तो हम पर अगर लाइट गिरती है तो ना ही हमारी पोजीशन चेंज होगी और ना ही हमारा मोमेंटम चेंज होगा. तो हमारे केस में, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के केस में, हमारी पोजीशन भी हम सही मेजर कर सकते हैं और मोमेंटम भी सही मेजर कर सकते हैं. बट दिस प्रिंसिपल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, क्योंकि उनकी पोजीशन और मोमेंटम चेंज होता है फोटोन्स जब उनके ऊपर स्ट्राइक करते हैं. अगर हम किसी डार्क रूम में एंटर कर रहे हैं, लाइट ऑन करते हैं, तो उस लाइट जब वो लाइट जो हमारे ऊपर गिरती है, हमारी ना तो पोजीशन चेंज होती है ना मोमेंटम चेंज होता है. तो दैट्स ऑल फॉर इन दिस लेक्चर. नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू विद अदर टॉपिक्स.